We are thankful to our team sponsors who are the major driving energy behind the teams. VK Financial Services by Mr. Bharat Thipsara, Tray Lady owned by Mr. Pratham Shah, Bohra Group of Firms owned by Mr. Vishal Bohra, Hina Collections owned by Mr. Kunal Nibjaya, Hands and Ensis by Mr. Natesh and Uncle Shloda. We thank all our sponsors for their tremendous support. Thank you. Now, I would like to request Mr. Shubham Bhandari to introduce our speaker, Mr. Vivek Bajaj. Jai Jinendra. The task of introducing today's speaker, Sri Vivekji Bajaj, is of great privilege to me. If one takes a closer look at the alchemy of Vivekji, two distinct virtues pop up besides perseverance and hard work. These are pioneering spirit and willingness. Mr. Vivekji Bajaj is the founder of Credent InfoEdge, an enterprise involved in simplifying finance for everyone. He has over 15 years of experience in the financial market. He's a chartered accountant, company secretary, and MBA from IIM Indore. He began his career as an analyst and moved on to become a trader and create one of the largest derivatives trading desks in Eastern India with over 150 traders and also one of the top algo trading desks in Mumbai. He's passionate about data, technology, and education. For the last 5 years, he has been involved in empowering people with right learning and analytics in finance through his online ventures, elearnmarkets.com and StockEdge app. It is our honor to have you here today, sir. We welcome you. Thank you, Shubham. Vivek, sir, over to you. We are excited to learn and hear from you. Thank you. Very good morning. And I must thank you all for allocating another 2 hours of Sunday to me, listening to me. I hope it will be worthy for you to attend this. I must thank Tatia and the entire team which is behind this. And, I hearing Mr. Tatia and he said that, there are beginners and there are also Vivek, sorry, 1 minute. I have muted you by mistake. 1 minute. Oh, that's okay. Am I audible now? Yes, sir. Yeah, that's okay. So that's okay. So let's continue where what I am supposed to do here is, so it's a battle of stock. That means we are talking about playing a short-term trading, right? Can I get some clarity that is it battle for short-term trading or is it battle for wealth creation? Sir, we are competing for 2 trading weeks. Okay. So we are trading, but we are trying to ensure that they learn the ways of wealth creation. Wow. Fight for 2 weeks and wealth creation. That's what stock market is meant to be. In 2 weeks, we have to create wealth. So, okay, I'll try my best to show you how it can be done. And in the process, I will also share some of the things which may not be which may not be relevant for this battle, but still it will lay a good foundation for our discussion. All right. So let me do a screen sharing. Can you please make me the host? Yes, sir. On it. और प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं हिंदी भी यूज कर सकूं because I feel very comfortable when I am speaking Hindi. Definitely, sir. Please go for it. Yeah. Okay, so I'm doing the screen sharing. Or for some time, थोड़ी time के लिए, I'm going to use my presentation and please allow me to speak what I'm speaking. We'll do a lot of practical discussions. I'll try to give you, some kind of a hack to participate in the market for that battle. So that will happen towards the end when we'll discuss a lot of practical examples, charts, and probably from Monday, you'll be able to guess which stock will go up in the coming 1 or 2 weeks. So, but let me just lay the foundation by explaining the concept to all of you. It was very difficult for me to make a presentation for this audience because, I took similar kind of a session with Jito Kolkata, and we talked about why market is going up and more on the investing and the wisdom side. But then I thought that it's a competition which you guys are participating, and the whole framework should be content as well as the competition framework. Am I audible?
Yes, sir, you're audible, sir. Yeah. So I'll keep on asking in the middle so that we are in same page. So someone can volunteer and just keep on responding back to me. Okay. So how do we Awesome. become stock market ready? So thoda about, for 5-10 minutes, just hear me out. For people who are interested in trading, they may not like this discussion, but that's okay. Just hear me out. What is equity? When we talk about stock market, we are talking about equity market. So, शायद छोटे बच्चे भी जानते हैं कि equity is basically you own certain part of that company. Okay. It's such a fascinating thing. Just imagine that we all want to do business in our life, but we can't do business, all the businesses by our own hand. What a lovely way to have us participate in the business by investing only 100 rupees or 1000 rupees or 2000 rupees in that business. Once you become investor in any company, you are literally running that business. Okay, you may not be the decision making authority. Your participation in that business will be limited to the stake which you have, which could be one share, which could be 1% stake in the company. But still, you get preview to so many things related to that company. Once you have access to annual report, you have access to AGM, etc. आपको उस business के बारे में कितना पता लगता है, and that opens up your mind so much. So whenever I'm talking about equity market these days to people, I'm not asking them to invest or trade. I'm asking them to look at equity market to broaden your horizon. Imagine that you buy one share of all Nifty 50 stocks, only one share. Your investment will be very marginal, maybe in few lakhs, initial lakhs. But imagine you will get access to 50 businesses in India, which are literally the leaders. And once you know about them, you can plan your career, you can plan your own business so nicely. So equity for me is not about investing product. It's a way to accumulate wisdoms of life. And the more I'm getting into equity, I mean, it has been almost 16, 17 years in equity, and I still feel like a learner of stock market because there's so much I can learn from market. There's so many companies, there's so many entrepreneurs, so many businesses in market that there is no limit to the learning which you can get from stock market. Okay. So equity is very, very powerful instrument, not only to park your money, but to know about life. The other concept which I want to park in your mind is that why stock price will always go up. It's a very strong statement, huh? And obviously it's not valid for 1 or 2 months. It's valid for 10 years or 15 years. कि क्यों stock market में हमेशा prices ऊपर ही जाएंगे over a longer time frame. इसका concept बहुत simple है. When company is making profit, obviously companies are intended to make profit. Forget about the startups and the valuation where the objective is no more to make profit. The objective is something else, which I'm still trying to comprehend. But as a traditional chartered accountant, my mind says that a company has to make profit. What happens to that profit? Either that profit goes back to shareholders as a dividend, right? Or the profit stays in the company for future growth prospect, right? Now, when the profit stays in the company, it becomes a retained earning, and the company is deploying that money for future growth. So it could be heavy capex, or it could be some kind of inorganic growth by buying equivalent company in similar sector for forward integration. Okay. For example, Imami bought Jhandu. So that was a forward integration, a natural acquisition using the cash available in the company for future growth of the company, right? Now, this future growth will multiply the EPS. Where will the impact of that future growth visible? The impact will be visible on the stock prices. So earning made by the company minus dividend, the retained earning aggregated over a period of time will get reflected in stock price. So principally, a stock which is growing nominally and consistent compounder, say Asian Paints or SDFC Bank, etc., Hero Honda, these companies, they may have intermissions, they may have falls for a few months, few years, but if their business is consistently performing like this, their stock price will also keep on performing because retained earning will give them a multiplier effect. So all of us who are attending today, please make this thing absolutely clear in your mind that A, equity is a place for knowledge and wisdom, which will help your existing occupation. And B, equity prices will always go up for a longer time perspective. Okay.
Now, what are the different kind of research we as market participants do in the market? Pay attention to this discussion. Very interesting discussion we'll have. And this will also help people who will be fighting that battle for coming 2-3 weeks. Typically, fundamental research, technical research, and one of the evolving research science for the last 4 to 5 years is the sentiment research. I'll talk about it later. First, let's talk about fundamental research. Now, what is fundamental research? Fundamental research says that the current market price of any financial instrument, not necessarily equity, it could be gold, it could be currency, it could be any financial asset. Fundamental analyst will always believe that the current market price is wrong price. जैसे अगर रिलायंस अभी 2200 रुपए चल रहा है तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेगा कि ये गलत है, या तो इसका प्राइस होना चाहिए 2800, 2900, 3000, या इसका प्राइस होना चाहिए 1200, 1300. That means the fundamental analyst is trying to calculate the fair value of that financial asset. चलो इक्विटी छोड़ देते हैं, एक बार करेंसी के बारे में बात करते हैं कि अभी करेंसी का रेट है 73. Now a fundamental analyst will never accept this rate. The person will say that इसका 78 fair value होना चाहिए. Now imagine how this 78 fair value is calculated. So you have USD INR. So these are two different instruments. And when we are talking about a rate, we are talking about a parity rate between two different instruments. So INR के अपने set of factors होंगे, US dollar के अपने set of factors होंगे, जो futuristic में, क्योंकि market is all about future, जो future में उन factors के कारण USD पे एक impact आएगा, INR पे impact होगा, जो finally जाके एक ऐसा price point बनेगा which acts as an equilibrium price point for everyone. I may have my own estimate of fair value. You may have your own estimate of fair value, but finally there is market which will decide what is the equilibrium price of that fair value. Let's come back to stock. Reliance right now is trading at around 2200. तो कोई भी स्टॉक के प्राइस के अंदर में दो कंपोनेंट्स होते हैं. One is the intrinsic value, which is like the bare minimum value of that company. तो अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो कल उतना रुपया तो शेयर होल्डर को लॉजिकली मिलना ही चाहिए. एंड द अदर इज द स्पेकुलेटिव वैल्यू. ओके, रिलायंस राइट नाउ इज 2200 और उसका बुक वैल्यू इज 1000 रुपीज. लेट्स फॉर द आर्गुमेंट से मान लेते हैं कि बुक वैल्यू ही इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऑल्दो इट इज नॉट अ राइट आर्गुमेंट, बट एक बार मान लेते हैं कि उसका जो बुक वैल्यू है वही इंट्रिंसिक वैल्यू है. दैट मीन्स इतना वैल्यू तो शेयर होल्डर को मिलेगा ही मिलेगा. बाकी 1200 रुपए जो रिलायंस का भी प्राइस एक्स्ट्रा प्राइस है, दैट इज द स्पेकुलेटिव वैल्यू. व्हाट इज द स्पेकुलेशन गोइंग ऑन? स्पेकुलेशन इज गोइंग ऑन कि हाउ द कंपनी विल परफॉर्म इन फ्यूचर, राइट? नाउ फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन एंड ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन जजमेंट अबाउट द फ्यूचर, राइट? कोई बोलेगा कि कंपनी 16% ग्रो करेगी, कोई बोलेगा 17% ग्रो करेगी, कोई बोलेगा 22% ग्रो करेगी. सो ऑल ऑफ अस विल हैव आवर ओन असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर. दैट इज द रीजन Reliance has buyer at 2200 as well as seller at 2200. जो 2200 के अंदर में बायर है वो बोलता है फ्यूचर में बहुत जबरदस्त काम करने वाली है और ग्रोथ काफी आने वाला है, सो लेट्स बाय बिकॉज द फेयर वैल्यू इज फार हायर देन इट इज राइट नाउ. जो बेच रहा है 2200 में वो बोल रहा है कि ये कंपनी का कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर इतना ग्रो नहीं करेगी, इससे कम ग्रो करेगी, तो उसको स्टॉक को बेच देना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. Fundamental research is all about finding the fair value of an underlying, and all fair value of an underlying will have two components, intrinsic value and the speculative value. एक और example लेते हैं gold, which is our favorite instrument. So gold right now is trading around say $1770 per ounce. Okay, एक ounce gold निकालने का cost होता है तकरीबन 800-850 ounce. जब मैंने लास्ट पढ़ा था, अभी पता नहीं लेटेस्ट क्या चल रहा है, बट $800-850 पर आउंस का एक आउंस गोल्ड निकालने का कॉस्ट है. बाकी जो $900 आउंस जो भाव एक्स्ट्रा है, दैट इज सम स्पेकुलेटिव वैल्यू ऑफ गोल्ड. नाउ गोल्ड इज अ वेरी यूनिक इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ कमोडिटी, इट इज अ करेंसी एंड इट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल आइटम. तो बड़ा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन फाइनली ड्राइव करता है गोल्ड के प्राइसेस को. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, but concept is any financial asset you see, एक intrinsic value होता है और एक speculative value होता है. हम लोगों को दिखता है जब मार्केट तेजी में होता है तो speculative value बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज फ्यूचर बहुत अच्छा लिखा जाता है.
बहुत अच्छा होपफुल हो जाता है मार्केट, तो speculative value becomes far higher than the intrinsic value. And when market falls, speculative value becomes lower and it comes nearer to the intrinsic value. इसीलिए मंदी के अंदर में जब आप शेयर देखेंगे सस्ते मिल जाते हैं, मतलब वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में आ गए, तब आप लेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। मेरा एक पर्सनल एस्टिमेट है कि हमको अपनी लाइफ में सिर्फ 4 बार मंदी मिलती है। मेरा, I mean, it's maybe wrong, there's nothing empirical proved about it, but I have seen the chart of last 100 years. मेरे को मेरी लाइफ में सिर्फ 4 बार मंदी मिलेगी और बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। 2008 I got an opportunity to make money for myself because of 2008 मंदी। 2020 was a great opportunity। अब मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे हैं and I need to be ready with my capital to deploy when market में मंदी आएगा, because बड़ा पैसा मंदी में बनता है। और तेजी के अंदर में अभी obviously you make money in तेजी, but there is obviously a lesser margin of safety। मंदी के अंदर में margin of safety is far higher। I hope you understand fundamental। अब थोड़ा टेक्निकल्स पे चलते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट बोलता है कि जो करंट भाव है ना वो ये सही है, उसको हम गलत नहीं बोल सकते। फंडामेंटल एनालिस्ट बोलता है करंट भाव गलत है, टेक्निकल बोलता है जो करंट भाव है वही सही है। और उसका रोल सिर्फ यही है कि आई वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट द करंट प्राइस इज गोइंग टू डू। अगर करंट प्राइस ऊपर जाने को है तो मेरे को लेके काम करना है, अगर करंट प्राइस नीचे जाने को है तो मुझे बेच के काम करना है। ठीक है, सो the whole purpose of technical analysis is to predict what the crowd is doing and then follow the crowd। सेंटिमेंट एनालिसिस ये बड़ा बहुत ही नया फील्ड है, पिछले 5 साल से काफी बड़ा हो गया और इस पे मशीन्स बहुत काम कर रहे हैं, particularly after machine learning and artificial intelligence has taken over everything। Even in market now AI is big applied। सेंटिमेंट क्या है? सपोज हम लोग अभी कुछ बात कर रहे हैं और वी टॉक अबाउट रिलायंस एंड यू ऑल गेट कन्विंस्ड विद माय नैरेटिव अबाउट रिलायंस, और आपके मन में एक अच्छी सी भावना आ गई रिलायंस को लेके कि हाँ बात तो सर सही बोल रहे हैं, रिलायंस तो तेज होना ही चाहिए। दैट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट विच गॉट जनरेटेड बिकॉज ऑफ माय स्पीच। एंड मंडे आप लोग में से कुछ लोग जाके ट्रेड करोगे, आप करना मत, बट अगर आप करोगे तो दैट सेंटिमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्राइस बिहेवियर, which is nothing but technical analysis। So sentiment is actually one step before technical analysis। और वो कैसे मेजर होते हैं? एक सबसे बड़ा सेंटिमेंट मेजरमेंट टूल होता है कि ऑपरेटर जो मार्केट में एक्टिव है, ऑपरेटर इज अ वर्ड व्हिच यू मे फाइंड इट टू बी डेरोगेटरी, बट for a person like me, I don't find word operator to be derogative, because I know the fact is every stock in stock market is driven by an operator। Who is an operator? Operator is a person who has very large position in that stock and the person want that stock to behave in a certain manner। तो अगर आप ऑपरेटर का पोजीशन को जान पाते हैं, वो भी 2 ही तरीका है, एक तो ऑपरेटर से फोन में बात हो जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल तरीका है। दूसरा है कि मार्केट में जो पोजीशंस हैं उस स्टॉक के अंदर में, उस पोजीशन में अगर मैं डीपली घुसूं तो क्या मैं बेस्ट एस्टिमेटेड पॉसिबिलिटी से ऑपरेटर का पोजीशन को एस्टिमेट कर सकता हूं? क्या हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी होने का, बट हो सकता है। सेकंड इज द सेंटिमेंट विच आर एसोसिएटेड इन पब्लिक फोरम्स, जैसे ट्विटर में लोग उस स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में बोल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में बोल रहे हैं, उस स्टॉक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो अच्छा लोग बताएंगे तो स्टॉक प्राइस भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। इंडिया में सेंटिमेंट इज एन इवॉल्विंग साइंस। यूएस में अब तो बहुत बड़ा हो गया, इनफैक्ट यूएस में फाइनेंशियल मार्केट में ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम ऑफ रोबोट्स करते हैं, 20% मैनुअल कर रहे हैं। इंडिया में ये होगा अभी 60-40 स्टिल पीपल आर डूइंग। तो ये जो रोबोट्स मार्केट में अप्लाई हो रहे हैं, these robots are largely using sentiment indicators like news or views, etc., to trade actively into the market। For our discussion, let's not talk about sentiment, let's talk about fundamental and technical। स्पेशली जब हम लोग बैटल की बात करते हैं, 2 हफ्ते की बैटल की बात करते हैं, तो हमारे लिए टेक्निकल का ज्यादा रिलेवेंस है डिस्कशन में, rather than discussing the fundamentals। एक मिनट, let me also take a pen।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पेन यूज कर रहे हैं, तो मेरा भी मन कर गया, तो मैं भी अब पेन यूज करूंगा समझाने के लिए. So how to get your edge? हाँ, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. जो जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं या जो एक अपने लिए एक खुद का फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने एक हमको टर्म कॉइन करके दे दिया है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप उन्हीं स्टॉक में फोकस करेंगे या उन्हीं इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे जहां जिसका आपको एक समझ है. फॉर एग्जाम्पल, एनी प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग, the company which is manufacturing that product. For example, any industry where you belong to, the companies which are listed in that industry is easier for you to comprehend. Or it could be any vendor of your company which is belonging to some other industry. Understanding that industry from that vendor will be relatively easier for you. So circle of competences कि मेरा जितना काबिलियत है कि इतना मैं समझ सकता हूं, मैं उसी में फोकस करूंगा. अगर आप कोई सेक्टर को समझ नहीं सकते, if you can't understand a particular working of a sector, then you will not focus in that sector. Second is circle of influence. अब circle of influence क्या है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से समझ में आ गया कि हमारी काबिलियत. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है कि एज अ सोशल एनिमल वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड एंड मेनी मोर. And thank God, because of social media, it's the limit is getting infinity, which is good as well as bad. So agar you are part of a good influence related to stock market, so that means your network is such that it feeds you right information, right stock idea, right analytics. That is the network you should focus on. So clearly you should define circle of good control, circle of influence, and a circle of concern in your life. कि यार ये जो सर्कल है ना, इससे मेरे को दूर रहना है. वो फेसबुक हो सकता है, वो कोई ट्विटर हैंडल हो सकता है, लेकिन जो सर्कल हमको स्टॉक मार्केट का जर्नी में एक अच्छा राह देता है, we have to be only part of that circle. Otherwise it will become so noisy that you will get distracted on a real time basis. Vivek ji, just a second. Yeah, can you hear me? So, can you use the annotations to remove the lines on the screen? Yeah, I'll do that. So let me see, hide, enable annotations. Okay. So I'm just trying to figure out how to do that. Just give me a minute. Okay, I know it. Okay, got it. Clear all drawings. Yeah, done. I hope it's not visible to you anymore. No, it's not, sir. We're very sorry. Then it's okay. ये मतलब होता ही है, रेगुलर है ये, so that's not a problem. It's not anyone's mistake. It's okay. So what's the perfect equation? कि जो बिजनेस जिसके बारे में आपको समझ है, जो आप समझ सकते हैं, और वो इन्फ्लुएंस जो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट, फाइनली इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तभी वेल्थ क्रिएट होगा. उसके अलावा खाना पूर्ति है, टाइम वेस्टेज है, you will end up spending a lot of time and finally that time will not be productive. So अगर आपको serious wealth create करना है मार्केट से, तो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे रिस्ट्रिक्ट रहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे फोकस करिए और गुड इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ जुड़िए. स्टॉक मार्केट के अंदर में बड़ा पैसा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं बनता है. बड़ा पैसा बनता है when you are in good network of good people, and that's the reality. And you guys are blessed. I mean, Jito, there are some incredible names of industries who are part of Jito. I mean, one of the big names is Motilal Oswal ji. So I'm sure that you can find out the right network for yourself and become part of those elite networks. Okay, how do I do the market research? ये तो थोड़ा open-ended बातें मैंने कर दी, but let's now try to get into that battle discussion as early as possible. How do we do the market research? जब भी हम किसी तरह का रिसर्च करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास में डेटा. बिकॉज डेटा बिना हम क्या रिसर्च करेंगे? तो या तो आपके पास हार्ड इंफॉर्मेशन है या आपके पास में सॉफ्ट इंफॉर्मेशन है. हार्ड इंफॉर्मेशन कंपनीज के फाइनेंशियल्स वगैरह, सेक्टर्स के डेटा, सेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, और मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है उसका भी डेटा. मार्केट में चल रहा है मतलब मार्केट में किस तरह का वॉल्यूम है,
किस तरह का डेप्थ है, कहाँ ऑपरेटर ने पोजीशन बिल्ड किया है, किस सेक्टर में भी बाइंग इंटरेस्ट है, किस सेक्टर में भी सेलिंग इंटरेस्ट है, ये सारा मार्केट इंफॉर्मेशन अगर आप मार्केट डेटा को डिकोड करेंगे उससे आपको मिल जाएगा. फॉर मी दीज आर हार्ड इंफॉर्मेशंस. But the soft informations are typically about the promoter, about the team which is behind the promoter, and what is the expectation from the business. That expectation is clearly penned down by the promoter in their quarterly result reviews. तो जितना आप प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे, जितना आप उनकी टीम के बारे में पढ़ेंगे, जितना उनके कॉन कॉल्स सुनेंगे, every company they have to come out with a quarterly result. And typically most of the company come out with con call after the quarterly result. और कॉन कॉल में जब आप सुनते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि ये प्रमोटर या सीईओ ऑफ द कंपनी, इज ही ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट और इज ही एक्चुअली द जेन्युइन गाय हु इज डूइंग इट द राइट वे. Most of the serious businessmen, serious investors, they attend all the con calls. आपने सुना होगा कि राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन का कॉन कॉल अटेंड किया और मैनेजमेंट की बैंड बजा दी. That's the kind of deep research these people do, because ultimately when you are investing in the company, to a certain extent you are investing in the business and the financials of the company, but finally it's the promoter and the team and their integrity and capability which will drive wealth creation for your portfolio. एक क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं कि is buy and hold strategy dead now because of so much of disruption happening everywhere. वॉरेन बफेट साहब ने कमा लिया, चलिए वो 100 साल का हिस्ट्री था, कमा लिया, बट इफ वी टुडे बाय टुडे, शुड वी होल्ड इट फॉरएवर or should we be actively investing management? The answer is not so simple. There will be businesses who will combat all the disruptions and still emerge winners. There will be businesses which will literally own pipelines in our country. जैसे for example Reliance Jio है, तो उन्होंने तो पाइपलाइन बैठा दिया. अब उस पाइपलाइन को रिप्लेस करना हमेशा डिफिकल्ट होता है. देयर विल बी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जहां पर लिक्विडिटी ऑलरेडी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल Naukri.com और इंडिया मार्ट और फॉर दैट मैटर MCX. ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है जहां ऑलरेडी लिक्विडिटी आ गई है, और एक बार किसी चीज में लिक्विडिटी आ जाती है तो वो लिक्विडिटी से हटाना उसको बहुत डिफिकल्ट है, no matter what kind of disruption comes into the system. But it's very important for you to know this, that the world is not the same anymore since 2008. Why 2008? 2008 में Android Play Store को open up किया गया था so that anyone can develop the applications. 2008 में Apple ने Siri का API open किया था. There is a brilliant book which all of you should read. It's called Modern Monopolies. A must read for all, because you guys are young and now you want to plan your life ahead. Modern Monopolies will open your mind कि ये दुनिया क्यों चेंज हो गई है, ये सब वैल्यूएशन क्यों मिलती है स्टार्टअप्स को. Because if you are in the right product, tech product obviously, and if people have already come into your platform, it is very difficult to take them away from your platform. So 2008 is a very important benchmark for human evolution. तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और 2008 में जो ऐप स्टोर खुला वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था दुनिया के अंदर में. The monopoly shifting from sellers to the buyers, new asset light business models and emerging. We all know that जितने नए businesses आ रहे हैं उनका एक ही मॉडल है, टेक को इनेबल करो और कोई भी एसेट को ओन मत करो, चाहे घर है चाहे गाड़ी है, कोई ओन नहीं करेगा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना के छोड़ देंगे. So basically my point is that there is no certainty of any business staying there for a longer time frame except for the owners of pipelines. और पाइपलाइन बिजनेस मतलब कुछ भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन पाइपलाइन हो सकता है, एक वाटर पाइपलाइन हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल पाइपलाइन भी हो सकती है. The best framework to make money from stock market as an investor is, first thing first, you have to understand that active investing is the need of the hour. Passive investing से पैसे बनेंगे but wealth नहीं create होगा. I mean, see what is going to happen that इंडिया का जीडीपी सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 6-6.5% ग्रो करेगा और इन्फ्लेशन भी 6% है, तो 12% हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गया. फिर उसके बाद एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम हम 2%-3% का ऐड कर लेते हैं, तो 14 से 15% रिटर्न हमको स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए बेर मिनिमम, इवन दो यू आर पैसिव इन्वेस्टर. तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लीजिए निफ्टी का,
या आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, तो आपको 14 से 15% एनुअलाइज रिटर्न मिलना ही चाहिए 10 साल 20 साल का होराइजन में। लेकिन अगर आपको वो 20% 22% एनुअलाइज रिटर्न चाहिए, विच I mean, you guys being young, you should aspire for that. When I started, I targeted, anywhere between 50 to 60% annualized return because my capital base was small. So for you also, I would expect that anything below 30% is not desirable for you. तो उस केस के अंदर में एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है? जरूरी नहीं कि आपको ट्रेडिंग करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज एटलीस्ट एक वीक में 2 घंटे, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, टू स्टार्ट ऑफ विद। अगर हर हफ्ते का हम 2 घंटा मार्केट को दें और हमारी जो कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसको ट्रैक करें कि वहां क्या न्यूज आ रही है, वहां क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां की प्राइसेस कैसे बिहेव कर रही है, और स्टॉकेज ऐप के अंदर में हमने सब कुछ दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक दैट analytics done in 2 hours. Start with 2 hours a week, and then probably every quarter increase it to 3 hours, then 4 hours, then 5 hours. A sensible person who makes money from stock market spends anywhere between 15 hours to 20 hours a week in stock market, irrespective of what occupation that person is doing. Okay, most of the time obviously spend on weekends. The initial research should be a combination of objective and subjective parameters. Restrict yourself to companies whose business you can understand. इसका एक मैंने मॉडल बना रखा है। if you are starting the market, I don't know how many of you are starting or how many of are already expert in the market, but just hear me out. If you are starting the market, I have this strategy called 10-10-10. 10-10-10 means start with one stock a month. वो एक स्टॉक में पूरी तरीके से घुस जाओ, उसका फंडामेंटल देखो, उसके बिजनेस मॉडल समझो, उसका प्राइस बिहेवियर देखो। सो बेसिकली यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट स्टॉक, and then next month add one more stock, and then next month add another stock. तो ऐसे करके हमारे पास 10 स्टॉक हो जाएंगे और वो 10 स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। इट इज लाइक those 10 stocks will become your friends, and we always work with limited friends, right? We may have many Facebook friends, we may have many Twitter friends, but finally the core friends will always be limited. So वो 10 स्टॉक से अगर आप दोस्ती कर लेंगे और उन्हीं को ही फॉलो करेंगे और आने वाले 10 महीने तक प्लस 10 महीना, मतलब अगर 20 महीने तक से वही 10 स्टॉक में काम करेंगे, you will develop such a phenomenal command in those stocks or financial asset. It could be gold also, it could be crude oil, it could be any stock, anything. You will develop a fantastic relationship with that stock, that if at a point of time stock has to go up, it will inform you. If it has to go down, it will inform you. That is a kind of dedication you have to give in market in the initial 2 years of base building. ये 2 साल की तपस्या जो तप लेता है वो पूरी 40-45 साल तक मार्केट से बहुत पैसा कमाता है। But the problem with all of us is that we are very restless, or we have this impulsive desire of getting things extremely fast. Especially the millennials have become extremely restless. So stock market is not a place where you play games, right? I mean, you can, if you want to use your invest 10,000 rupees, trade in the market, use your full day and play game. It's not a bad choice. But then if you're talking about wealth, first 2 years of dedication is required to get into that zone of wealth creation for market. Sorry, I think I'm giving a lot of open-ended gyan also, but please hear me out, because these are all more experiential sharing, which will help you over a period of time. The broader parameters which, sorry, you're saying something? No, sir. We were actually saying that we would love to hear more. Okay, thank you. So broader parameters which we look at when we are evaluating any company for investing is the growth, efficiency of how the business has been done, whether the capital and the assets have been utilized the right way, profitability of the company, solvency, whether the company is capable to remain solvent over a longer time frame, how the price is behaving, whether the company has become expensive or cheap, and lastly the quality. ये सारा मिला के आप मान लो 25% होगा और ये है 75%। सब कुछ सही है, लेकिन अगर मैनेजमेंट उसके बाद भी करप्ट हो गया तो फिर ये कंपनी गई। So tracking the quality of management and the new team which they are recruiting and any exit by the old team members, all these are very important. और ये सारा information आपको company announcements में मिल जाता है। So I mean, one habit which you all should have always
Let me just allow me to show you that. जब आप स्टॉकेज ऐप में जाएंगे, आपके फोन पे भी ऐप अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे भी अगर किसको देखना है तो web.stockage.com में है. अगर आप किसी भी कंपनी को ट्रैक करना चाहते हैं, you know, so the best way to do that, go to my stockage, go to watch list, create your own stock watch list. Okay, इसमें आप अपने स्टॉक्स ऐड कर लीजिए. आप देखो इसमें कुछ भी अगर न्यूज आएगा तो आपके सामने आ जाएगा, कोई भी कंपनी अनाउंसमेंट होगी तो आपके सामने आ जाएगी. तो टिपिकली व्हाट हैपेंस, ऑल द कंपनीज, if there is any information which can have a material impact on the stock price, have to be informed to the exchange first. It cannot get leaked. तो अगर आप डेली बेसिस में यही देखेंगे ना कि ये सब सारी कंपनीज मेरी हैं, इनमें क्या क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, इसी को आप प्रॉपर्ली ट्रैक करेंगे तो आपकी कंपनीज के बारे में आपको फेयर आइडिया लगने लग जाएगा कि इस कंपनी के अंदर में मेजरली अनाउंसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है. ओके, थोड़ा सा टेंजेंट चेंज करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑसम गाय. हाँ, आई होप यू रिमेंबर दिस गाय. Awesome. He is the guy who laid foundation for so many things in the world. I mean, truly a revolutionary scientist who gave awesome studies. Maybe in our personal life, we are not seeing application of those studies, but at a broader level, science cannot be more indebted to this fellow than any other scientist the world has ever seen. Obviously, you know the name, so I don't have to say this name. I liked his theories, and one of the theory which he produced, the theory of relativity, that has a huge application in market. बाकी theories light के around जो theories है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ because उसपे काफी चीजें हुई है which is not in context to stock market. But जो theory of relativity इनकी है ना, वो बहुत interesting है, सोचने लायक है. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट को जब भी आप मेजर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं तो उसको हमेशा दूसरी चीजों से रिलेटिवली इवैल्यूएट करनी चाहिए, क्योंकि स्टैंड अलोन किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पापा मेरे को बोला करते थे कि देखिए कितना अच्छा कर रहा पढ़ाई में, तू तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो देयर वाज अ रिलेटिविटी. या हम लोग अपनी देखिए करेंसी के अंदर में जब भी हम ट्रेड करते हैं कि ये हॉल्स लेना तो ₹1 का हॉल्स है, so there is a relativity. Everything in our life has to have a relativity, right? That's such a basic thing, and it didn't take much of an effort for him to come out with this theory, but it was such a logical theory. Stock market में इसका बहुत बड़ा application है. Relativity in terms of time is also a very important factor in stock market. जब भी आप stock price को देखते हैं तो एक ग्राफ दिखता है, ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक प्राइस और एक टाइम. और हम लोग टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, बट टाइम इज सच एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल एंड वन हु कैन प्रिडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ टाइम ऑन द स्टॉक प्राइस. आई मीन वी ऑल नो द इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन द प्राइस, but can we predict the impact of time on the stock price? That is the big challenge, and a lot of people are trying to solve this problem, but I'm not sure whether the problem is easily solvable or not. But I have a method which I use to figure out how do I figure out stocks which have potential of beat other people, okay, or beating other people. So time relative, expectation relative, and that is, I think ये सबसे बड़ा reality अपन लोग की life का कि expectation भी relative है. It could be in relationships, it could be in market, it could be in anything, that we expect things to work in a certain manner, but the thing which is there as an object, as an item, that thing may not want it to, expect that in certain manner. So there is always a relativity mismatch there. And third is risk weightage opportunities. ये कितना important है. All of us have unique DNA, unique family background. All of us are so, I feel so, at times when I think about it, maybe I think very abstract also, but मुझे कई बार ये लगता है कि कितनी बढ़िया रचना है ये, कि हम लोग सब कितने यूनिक है. नो वन कैन से कि ये मेरे जैसा. सो हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग है, तरीका अलग है. कई लोग होते हैं जो मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं और उनके पैसे लगने लग जाते हैं तो हाथ पे पानी आने जाता है, तो घबरा जाते हैं. और कई लोग होते हैं पैसे लग रहे तो एकदम लगने दो, क्या है और आएंगे पैसे. सो द mental setup, the temperament of each individual is so unique,
And that's why market is there, where someone is buying at the same price and someone is selling at the same price. What a beautiful market, what a beautiful creation. जब हम लोग टाइम रिलेटिविटी की बात करते हैं, सो बेसिकली हम ये स्टॉक का प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं. इसको हम लोग कहते हैं स्विंग. जैसे वी ऑल हैव, थोड़ा वापस से एब्स्ट्रैक्ट में जाता हूं, तो मूड स्विंग. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम your mental state is not the same which it was just a moment ago, or probably what it will be in the coming moment, because our mind is in continuous swing mode. Our mind doesn't work in linear fashion. It always works in a continuous swing, and a lot of people are attributing that swing to natural swing phenomenon, because the whole world and nature itself is working in a swing. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एक स्विंग में ही होता है, सोइंग होगा, हार्वेस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल द वे होल एनवायरमेंट वर्क्स, द होल एयर रोटेशन वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स इन अ स्विंग फैशन. सो स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट नेचुरल स्विंग, दैट प्राइस नीचे जाएंगे, बायर जनरेट होंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर जनरेट होंगे, प्राइस नीचे जाएगा. सो दैट स्विंग कुड बी छोटा छोटा स्विंग, दैट कुड बी मीडियम टर्म स्विंग्स, एंड दैट स्विंग कुड बी लॉन्ग स्विंग्स. So there's a theory called Dow theory, which is very famous in technical analysis, जिसने actually technical analysis का base को बनाया था. कि Dow theory में बोला गया है कि market is a accumulation of multiple swings. तो बड़ा swing होता है, उसके अंदर में छोटे छोटे swing होते हैं, उसके अंदर में छुटके छुटके swing होते हैं, उसके अंदर में नैनो swings होते हैं. अब आपको decide करना है कि आप market में किस tenure का swing को पकड़ना चाह रहे हैं, because काम हमको वही करना है, नीचे लेना ऊपर बेचना है, या ऊपर बेचना नीचे लेना है. अगर आपको नैनो स्विंग पकड़ना है मतलब इंट्राडे करना है. अगर आपको छोटे स्विंग पकड़ना है मतलब शॉर्ट स्विंग पकड़ना है, मतलब 2 दिन से लेके 10 दिन तक. अगर आपको बड़ा मीडियम टर्म स्विंग पकड़ना है तो शायद आप 2 दिन से लेके 30 दिन तक, 40 दिन तक, 45 दिन तक रखेंगे. अगर आपको बड़ा स्विंग पकड़ना है तब शायद आप 3 महीने 5 महीने का ट्रेड रखना चाहते हैं. और मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. आई हैव मूव्ड अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ. So for us, these stages of swing is important to be identified. First stage, when the swing starts. Second stage, when the swing is confirmed and it's in a direction. Third stage is when the swing makes a top, and fourth stage is when the swing starts getting terminated. अब आपको ये मानना पड़ेगा कि पहला स्टेज और तीसरा स्टेज ऑपरेटर का है, वो हमारे और आपके बस का नहीं. बिकॉज कोई भी स्टॉक में स्विंग जनरेट करने का काम एक ऑपरेटर का होता है, जिसके पास पैसे हैं. मैं तो नहीं कर सकता. आई एम नॉट द बिग गाय दैट आई कैन इनिशिएट अ स्विंग इन अ स्टॉक, बट आई कैन participate in that swing after I get a confirmation that yes, operator has entered that stock. Similarly, टॉप में हम कभी एग्जिट नहीं कर पाएंगे. अब जैसे अडानी है, तो अडानी का टॉप में मान लेते हैं कि वह टॉप हो गया, चलिए हुआ नहीं है बट मान लेते हैं अडानी का टॉप में मैं और आप तो नहीं निकल पाएंगे. लेकिन एक बार टॉप में कोई निकल गया और गिरते हुए बाजार में हमको कंफर्मेशन हो गया कि भाई अब टॉप बन गया, चुपचाप निकल जा, तो मैं निकल जाऊंगा. तो अगर 0 से 100 का मूवमेंट स्विंग में है, तो मैं अगर 30-40 में भी घुसा और 60-70 में भी निकल गया तो मेरा काम हो गया. ऑपरेटर 0 से 100 बनाएगा, उसको बनाने दीजिए. डोंट चैलेंज द ऑपरेटर, बिकॉज ऑपरेटर इज द वन हु इज इनिशिएटिंग द स्विंग इन द मार्केट. Again, coming back to the theory of relativity, so this is time-based relativity, and the other is when you are defining the strength or the weakness in a stock vis-a-vis some other instrument, which could be a benchmark, it could be a related instrument, or it could be an unrelated instrument. Am I going in the right direction? Just to take a quick feedback, because I saw 7 people has left, so I just want to be double sure that I am going in the right direction. Yes, sir. You very much are going in the right direction. 4 more people have joined. Okay. No, that's okay. I'm very particular about these, that I hope people are getting value for the time which they are spending on me. Okay. Yes. Let me continue. Please stop me if you feel that I just need to change the tangent. I have a lot of content, so I can change the tangent if needed. So, okay, allow me. So relationship with the benchmark, relationship with the related instrument, and relationship with the unrelated instrument.
हमारे मार्केट के अंदर में ग्लोबली आल्सो, नॉट जस्ट इन आवर मार्केट, ग्लोबली इफ यू सी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको रिलेटिवली मैप करना है तो वो बेंचमार्क के साथ मैप होता है। इंडिया में सबसे बड़ा बेंचमार्क है निफ्टी, बिकॉज निफ्टी सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट, इसका मतलब तेजी वाला उसके पास है। कैन वी मेक दैट कंक्लूजन? अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी के मुकाबले तेजी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो इसका मतलब, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं तेजड़िया, तेजड़िया उस स्टॉक के अंदर में बैठा है। और अगर आपको पता है ये ऑपरेटर तेजड़िया है, बिकॉज ऑपरेटर कैन बी तेजड़िया एज वेल एज मंदड़िया, तेजी वाला भी हो सकता है ऑपरेटर, मंदी वाला भी हो सकता है। आपको ये पता करना है कि ऑपरेटर किस तरफ में होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको पता है कि तेजी वाला है तो आप लेके काम करेंगे, अगर आपको पता है मंदी वाला है तो आप बेच के काम करेंगे। सो टाइम रिलेटिव एंड दिस इज मेजरिंग द बेंचमार्क। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, गाड़ी की रेस। ये गाड़ियों की रेस बहुत प्यारी होती है, मतलब आई डोंट नो, मैंने तो कभी देखा नहीं है ये, बट आई कैन जस्ट व्हेन आई सी द वीडियोस आई गेट सो फैसिनेटेड विद कार रेस। दे हैव सो मच टू टीच अस। Imagine this car race where these are the top two guys. The winner, most likely this guy will be the winner and this guy will be the second runners up. Okay. अब now we as a, से हम लोग को अगर बेट करना है, जैसे घोड़े की रेस में बेट करते हैं या गाड़ी की रेस में बेट करेंगे, तो हम इस गाड़ी पे बेट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये गाड़ी इस गाड़ी से बेटर परफॉर्म कर रही है, रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है। हो सकती है दोनों गाड़ी बहुत अच्छा कर रही हो, बट ये रिलेटिवली इससे बेटर परफॉर्म कर रही है, राइट? When you talk about measuring the relativeness in stock market, you have to measure the relative strength of one car vis-a-vis the other car, which is whether the car is strong enough vis-a-vis the other car to win the race. तो अगर ये स्टॉक निफ्टी के मुकाबले, नाम मैं इसको मार्केट के साथ रिलेट कर रहा हूं, अगर ये स्टॉक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है तो इसका जीतने का पॉसिबिलिटी हायर है देन दिस स्टॉक। इज दिस लॉजिकली सही? क्योंकि मैंने बेंचमार्क निफ्टी को यूज कर लिया। आप बोल सकते हो कि सर इसके साथ मैं इसी को कंपेयर कर लेता हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए बेंचमार्क है निफ्टी। तो अगर ये स्टॉक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है vis-a-vis this stock, then there is a high chance that this stock will outperform and win the race. इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। तो उसका एक इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बताता है कि निफ्टी के मुकाबले कौन स्ट्रॉन्गर है। दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि उस गाड़ी का स्पीडोमीटर है। अगर आज की डेट में ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्पीडोमीटर बोल रहा है कि गाड़ी का स्पीड स्लो हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे गाड़ी के रेस में स्ट्रेंथ भी देखना है और मोमेंटम भी देखना है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेजर्स दी मोमेंटम, ठीक है, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ विल मेजर दी रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ वन स्टॉक विज़-अविज़ दी अदर स्टॉक। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं। प्रैक्टिकल डिस्कशन के लिए कुछ चार्ट वर्ड देखते हैं। ये डिस्कशन के लिए मैं यूज करूंगा एंड ऑफ द डे एनालिसिस के लिए हमारा स्टॉकेज है एंड रियल टाइम एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू। मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिव मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये दोनों टूल आपके लिए सफिशिएंट है टू क्विकली पार्टिसिपेट इन द मार्केट इन द राइट मैनर। नाउ लेट मी जस्ट गो टू द चार्ट। ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है फ्री, both trading view and stockage is free, so you don't have to worry about shelling money for these, at least if you use the basic part. If you use obviously the advanced you have to subscribe, but जितना अपने को काम करना है वो फ्री में अवेलेबल है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा। ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाएंगे तो आपको ये ऐसा टूल नजर आएगा। यू कैन यूज इन्वेस्टिंग ऑल्सो, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल ट्रेडिंग व्यू बिकॉज ट्रेडिंग व्यू इज रियली रियली ऑसम। ट्रेडिंग व्यू के अंदर में कुछ चीजें अवेलेबल है जो आप यूज करेंगे तो आपको मजा आएगा। खुद का चार्ट आप बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं
और यहाँ वॉच लिस्ट है, तो आप अपने स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ बना सकते हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं और उसका चार्ट भी स्टडी कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ न्यू स्टॉक चार्ट इन ट्रेडिंग व्यू। तो ये मेरा टेम्पलेट है जो मैं ऑलरेडी बना रखा हूं, तो मैं एक बार इस टेम्पलेट को हटा देता हूं एंड लेट अस क्रिएट अ न्यू लेआउट। जब भी आप कोई नया चार्ट चालू करेंगे तो आपको इस तरह का ये चार्ट नजर आएगा जिसमें दिस इज द लाइन चार्ट, ये एक्सेस में प्राइस है और ये एक्सेस में टाइम है। ठीक है, ये है रिलायंस निफ्टी का चार्ट। एक काम करते हैं, रिलायंस यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ जाके आप रिलायंस कर सकते हो, लिख सकते हो, या आप कहीं पर भी क्लिक करके रिलायंस लिख सकते हो। रिलायंस मैंने क्लिक किया, एनएससी का रिलायंस मैंने सिलेक्ट किया, तो ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस मूवमेंट है। ओके, fair enough. This is a line chart because it is taking into account the closing price of Reliance on that day. If I want to see the open, high, low, close for the day, then you can convert this line chart into a candlestick. So what is the candlestick doing? ये हर दिन का open, high, low, close बता रहा है। अगर green है इसका मतलब close open के ऊपर हुआ है, अगर लाल है इसका मतलब close जो है वो open के नीचे हुआ है। Okay, very straightforward, very standard. There is lot of free content available. In fact, I would suggest जिसको एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न टू ट्रेड एक सीरीज बना रखी है। वो लर्न टू ट्रेड सीरीज में आप जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा ट्रेडिंग मैं अन्नपूर्णा को सिखा रहा हूं, आप भी ये पूरा लर्न टू ट्रेड सीरीज को देख के ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकते हो। देयर इज नो रॉकेट साइंस। ओके, एक बार वापस से आ जाते हैं मेरा डिस्कशन के अंदर में। यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कितना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है आज। ग्रीन का मतलब हो गया मोस्ट लाइकली बाइंग है, रेड का मतलब हो गया मोस्ट लाइकली सेलिंग है। ऑलराइट, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको करने बोलूंगा, विच इज वेरी इजी टू डू, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप प्लीज पे अटेंशन करना। In TradingView, you can add few indicators. So let me insert indicator. One of the indicator, you search for relative strength, not relative strength index. In fact, you have to add relative strength index. तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे, बट पहले हम ये करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल ढूंढते हैं। यहां पर अब पब्लिक लाइब्रेरी में ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक फैसिलिटी है कि लोग अपना खुद का मॉडल्स क्रिएट करके पब्लिकली होस्ट कर सकते हैं। तो यहां पब्लिक लाइब्रेरी में आपको एक मॉडल नजर आएगा, भारत ट्रेडर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। इसको आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है, तो वो इंडिकेटर यहां पर नीचे प्लॉट हो जाएगा। ऑलराइट, जब आप इंडिकेटर प्लॉट होगा तो यहां हर इंडिकेटर में सेटिंग्स अलाउड है ट्रेडिंग व्यू में। तो आप सेटिंग में जाएंगे तो यहां पीरियड को आप 55 कर दीजिए, बिकॉज आई यूज 55 पीरियड, और ये रेफरेंस लेवल को आप हटा दीजिए बिकॉज इट मेक्स इट मोर नॉइज फ्री, एंड ओके कर दीजिए। इस इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि अगर आरएस, ये जो आरएस है 55 पीरियड आरएस जो मैं यूज करता हूं, अगर आरएस 55 के ऊपर है तो ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये आरएस 55 के नीचे चला गया इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, और जब तक ये स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये स्टॉक हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक मूवमेंट दे दे, बट ये बहुत टाइम तक ये मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल मूवमेंट तभी होता है जब कंटिन्यूअस बेसिस पे कोई स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। ओके, I can see few people asking questions, but मैं अभी क्वेश्चन विंडो नहीं देख रहा हूं। Allow me another say 15-20 more minutes and then we'll take questions. Okay, so this is chart, this is RS indicator. I will also insert relative strength index, which is गाड़ी का स्पीडोमीटर। याद है आपको मैंने क्या कहा था? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में मैं सेटिंग में जाके यहां पे 14 पीरियड विल रिमेन 14, स्टाइल में जाके मैं इसको चेंज कर देता हूं 50। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि 50 के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो ठीक है, गाड़ी 50 के नीचे चली गई तब चिंता की बात है। तो 50 इज अ गुड इनफ बेंचमार्क। अब आपका देखिए एक मोटा मोटी टेम्पलेट रेडी हो गया। टेम्पलेट में क्या दिया मैंने,
प्राइस, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को एक काम करते हैं, अलग पैनल में बना लेते हैं। ये प्राइस के साथ ही पैनल में है, इसको मैं राइट क्लिक करके मूव टू न्यू पैनल बिलो कर देता हूं, तो ये एक नया पैनल बन गया। थोड़ा ऑपरेशनल ईज होता है अगर दूसरा पैनल होता है तो, और कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज माय रिलायंस का प्राइस चार्ट, दिस इज वॉल्यूम, this is relative strength of Reliance, and this is RSI. Relative strength measures my strength vis-a-vis Nifty, which is my benchmark. RSI measures the momentum in Reliance, which is vis-a-vis last 14 days price movement of this Reliance itself. अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा मैं सेटिंग इसको एक चेंज कर लेता हूं, एक राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके यहां पर एक सेटिंग में होता है ये अर्निंग स्प्लिट वगैरह यहां पर दिखाता है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि ये नॉइजी नहीं रहे, थोड़ा क्लीन रहे चार्ट। ऑलराइट, सो दिस इज आई थिंक प्रीटी सिंपल, कॉम्प्रिहेंडेबल। ओके, अब सपोज मुझे व्यू बनाना है किसी स्टॉक पे, ये तो वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट किसके लिए रेलेवेंट है? जो 6 महीने 7 महीने के लिए पोजीशन लेना चाहता है। तो मैं अभी रिलायंस को नहीं खरीदूंगा जब तक इसका आरएस 0 के ऊपर जाएगा, प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर कंसिस्टेंटली रहेगा। तो ये प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है, ठीक है। तो 2360 के ऊपर रिलायंस अगर बंद हुआ और आरएस 0 के ऊपर रहा और आरएसआई 50 के ऊपर रहा, इसका मतलब ये इस दौड़ के अंदर में अव्वल नंबर पे आने के लिए रेडी है, क्योंकि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसकी स्पीडोमीटर भी बता रही है कि गाड़ी की स्पीड उसकी बड़ी अच्छी है। तो मैं इसको लेके बैठ जाऊंगा एक हफ्ते का अगर मैं चार्ट देख रहा हूं तो, और इसका व्यू रहेगा मेरा 5 से 6 महीने के लिए। अगर मैं इस एक हफ्ते को चार्ट को डेली में कन्वर्ट कर देता हूं, तो डेली करके इसको, तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा। ऑब्वियसली जितना छोटे टेन्योर का आप चार्ट करोगे उतना आपको नॉइज ज्यादा दिखेगा, जो उतना मूवमेंट्स आपको ज्यादा दिखेंगे। तो डेली चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक ऑलरेडी आरएस 0 के ऊपर चला गया है और आरएसआई 50 के ऊपर है, तो ये स्टॉक अप स्ट्रेंथ है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ है। शॉर्ट टर्म मतलब एनीवे बिटवीन 2 days to 30 days, अगर मुझे इस स्टॉक में तेजी खेलना है तो मैं खेल सकता हूं। जब आप तेजी खेलना चाहते हैं तो आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप ट्रेड कैसे करेंगे? ये कैंडल स्टिक को मैं एक बार लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरा मॉडल बहुत सिंपल है कि अगर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई भी 50 के ऊपर है, तो प्रीवियसली जो हाई बनाया था इसने, क्योंकि स्विंग्स अलग अलग स्विंग्स है, जैसे ये एक स्विंग था, ये एक स्विंग था, यहां पर एक स्विंग था। देखिए कितने मल्टीपल स्विंग्स क्रिएट होते हैं स्टॉक्स में, छोटे स्विंग्स, मीडियम टर्म स्विंग्स, लॉन्ग टर्म स्विंग्स। प्रीवियस स्विंग का जो हाई था, जो ये जो प्रीवियस स्विंग के अंदर में जो हाई बनाया था क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके ऊपर जाएगा, ये भाव क्या 2250, तो ये स्टॉक अगर 2250 के ऊपर गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आरएसआई भी 50 के ऊपर है, तो मैं ये स्टॉक को लूंगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days to 30 days। इज इट क्लियर? अब आपने अगर ले लिया और ये नीचे चला गया, तो आप क्या करेंगे? स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जिस कैंडल में, इसको एक बार कैंडल बना लेते हैं वापस से, जब भी ब्रेकआउट हो इस रेंज के ऊपर और कैंडल क्रिएट होगा, कभी ब्रेकआउट होगा तो कैंडल बनेगा, उस कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं है, वापस से होगा फिर ट्राई करेंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं है। अगर आपको 10 में से 5 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट होता है और 5 ट्रेड में भी आप प्रॉफिट कर लेते हैं, सो टिपिकल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब लगने का 1 रुपया, आने का 2 रुपया मिनिमम, अगर 5 ट्रेड में भी हम राइट हो गए तो नेट में हम घर में पैसा बना सकते हैं। लेट मी रिपीट, when you are trading in the market, your risk management should be at least 1:2. How do you trade? When a stock gives a price breakout from previous swing high
and the stock is showing strength with good momentum, then you participate in that strength with a small stop loss with an objective of making at least 2 times of that stop loss as your profit. This is a typical trading setup which I follow religiously, and it's a successful setup. So if anyone wants to trade in the market actively, this setup can be adopted for the benefit. Okay. अब दूसरी बात आते हैं कि सर ये डेली तो आपने बता दिया है, अब मुझे ना बैटल है, मेरा 2 हफ्ते का बैटल है, तो उसमें मैं डेली चार्ट देखूंगा तो ये 2 हफ्ते का बैटल में तो कुछ होगा नहीं सर। तो उसका सोल्यूशन है कि आप डेली चार्ट मत देखिए, उसका चार्ट देखिए आप 2 आवरली चार्ट। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि इट एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। अब जब आप ट्रेड करेंगे छोटे अवधि के लिए, 2 हफ्ते के लिए आपको खाली ट्रेड करना है या 1 हफ्ते के लिए करना है, तो आपको 2 आवरली चार्ट देखना चाहिए। क्यों? बिकॉज मेरा मानना है कि मार्केट में 3 फेज होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और तीनों 2-2 घंटे के होते हैं अप्रोक्सीमेटली। 2 घंटे का जो मार्केट होता है या चार्ट बनता है ना, उसको मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है। छोटे छोटे टेन्योर के चार्ट्स को मैनिपुलेट ज्यादा किया जा सकता है बिकॉज उसके अंदर में छोटा कैपिटल का नीड होता है, बट बड़े चार्ट्स, बड़े ड्यूरेशन का, 2 घंटा या 1 दिन या 1 हफ्ते का, उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बाय द ऑपरेटर। तो अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये 2 घंटे का चार्ट इज गुड इनफ फॉर यू टू लुक एट द मार्केट। ओके, सो दिस इज अ टेम्पलेट विच आई हैव गिवन टू यू, a template which has RS, which has RSI, which has candlestick, and which has volume. If there is a breakout with volume support, it's a convincing breakout. If the price comes down and takes support around major levels, जैसे यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है कि बार बार प्राइस यहाँ आके कोई ना कोई वापस बाई कर ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ का फिर एक रेंज हो गया। जब प्राइस ब्रेकआउट देगा इस रेंज को, तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक यहां से एक रीजनेबल साइज का मूवमेंट दे सकता है। Now the last question which I'm sure it is coming into your mind, and I'll take another 10 minutes to answer that question, is how to identify stocks where there is chance of relative strength, high relative strength। क्या होता है, मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं और आप सारे स्टॉक्स को तो देख नहीं सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Although there are 2 ways to look at it. One is Nifty के या Nifty 200 indices। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर में Nifty 500, Nifty 200 के स्टॉक्स डाल रखे हैं। वहां पे मैं सारे चार्ट्स को स्टडी करता हूं, और जिस स्टॉक के अंदर में मुझे लगता है कि ये अपना प्राइस ब्रेकआउट पॉइंट के पास में है और चांसेस है कि ये स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे सकता है, ये मैं अब ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, तब मैं उस स्टॉक को मार्क कर लेता हूं और उसको नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग के लिए उसको रडार में डाल देता हूं। और जब भी वो प्राइस को ब्रेकआउट करता है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक फैसिलिटी है, आप राइट क्लिक करोगे तो आप अलर्ट ऐड कर सकते हो। तो जब भी ये प्राइस ब्रेकआउट देगा, आपको ये अलर्ट भेज देगा उस प्राइस पे, और फिर उसके बाद जाके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। दैट इज वन थिंग विच एक्टिव ट्रेडर्स डू, where they analyze at least 500 stocks every day or at least on Saturdays, and then mark their alerts, mark their stocks, and trade only when the alert in those stocks will come into the picture. The other way is scan करना, कि आप स्टॉक्स को स्कैन करके निकाल रहे हैं कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में इस तरह के आउटपुट आ सकते हैं। तो स्टॉकेज के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहां पर एक स्कैन नजर आएगा, स्कैन में आप जाएंगे तो प्राइस स्कैन नजर आएगा। ये सारे स्कैन बहुत ही ब्यूटीफुल स्कैन हमने बना रखे हैं। प्राइस स्कैन में आप जाएंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन नजर आएगा। आप इसके अंदर में जाएंगे तो कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। One of the parameter is strongly outperforming the benchmark index। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो मार्केट को बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब इस लिस्ट को भी हमको छोटा करना हो तो या तो आप फिल्टर्स कर सकते हैं कि मेरे को मेजर स्टॉक्स नहीं चाहिए, मेरे को सपोज खाली डेरिवेटिव्स में जो स्टॉक है उन्हीं पे फोकस करना है।
तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर मार्केट वहीं खड़ा रह गया या मार्केट रिकवर किया तो पॉसिबली है कि ये सारे स्टॉक्स रिकवर कर सकते हैं। ओके, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा है, कई बार क्या होता है, ऑपरेटर का पोजीशन देखना भी जरूरी होता है। तो आप हाई डिलीवर क्वांटिटी कि कौन कौन से स्टॉक है जिसमें डिलीवरी हाई है, और अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें डिलीवरी भी हाई है और जो स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें चांसेस है कि एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। डू यू एग्री टू दिस? कोई स्टॉक जिसमें डिलीवरी भी हाई है और प्राइस भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसमें अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो इट्स बेटर टू प्ले विद दो स्टॉक्स। सी, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, कंपनी क्या बिजनेस करती है उससे आपको मतलब ही नहीं है। आपके लिए प्राइस इज व्हाट इट इज। और ये सारे नाम, चाहे वो ओएनजीसी है या पीएनजीसी है, हाउ डज इट मैटर टू यू? प्राइस इज व्हाट मैटर्स। कि ये प्राइस पे अगर मोमेंटम आ रहा है तो मैं उस प्राइस में पार्टिसिपेट करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉकेज में जाके कॉम्बिनेशन स्कैन्स क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको ना कूपन कोड दे दूंगा, बिकॉज यू गाइस हैव कंपटीशन फॉर 2 weeks. I want you guys to use this because these combinations वगैरह is part of the premium, but I will give you a coupon code. The coupon code is VIV100, VIV100. तो वो आपको एक महीने का ये दे देगा ताकि आप इसको यूज कर पाए। Use that coupon code to subscribe to Stockage monthly plan, which will be no cost for you. It's worth 400, but I thought it's good to give it to you. तो VIV100 यूज करके आप ले लीजिएगा। यू कैन क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशन। तो आप आरएस और डिलीवरी दोनों को ऐड करके कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लीजिए। चलिए करते हैं क्रिएट साथ में। तो लेट्स क्रिएट अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड जीतो कॉम्बिनेशन। So you can add scan like RS, outperforming benchmark index, okay? And you can also add scan called high deliver quantity, okay? ये दो एक बार ऐड करके देखते हैं क्या क्या स्टॉक्स आ रहे हैं। ओके, सो ये सारी कंपनीज आई हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। These are all major stocks, not all stocks. You can filter to all or major or whatever. We believe there are around 650 stocks which are major stocks which can be used to trade. So इतने सारी कंपनीज आ गए। अब सपोज इसमें से मेरे को वही कंपनी में काम करना है जो फंडामेंटली थोड़ी सी ढंग की हो, जिनमें अपना पैसा लगे ना। तो एक और स्कैन ऐड करते हैं फंडामेंटल का, कि वो कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, वो कंपनी जो कंसिस्टेंट सेल्स जिसका चल रहा है, और वो कंपनी जो और क्या देखें, एफिशिएंसी छोड़ देते हैं, शेयर होल्डिंग में देख लेते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, मतलब बड़े लोगों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अब देखें कौन सी कंपनी आ रही है। वाओ, इतनी सारी कंपनी आ रही है। ठीक है, अभी भी मैं देख रहा हूं कि नहीं, इसमें देखिए परफेक्ट मैच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑलमोस्ट देयर भी है। परफेक्ट मैच और ऑलमोस्ट देयर में डिफरेंस ये है कि आई बिलीव देयर इज नो परफेक्ट बॉय और परफेक्ट गर्ल। एक दो कमियां सब में रहती है। तो अगर कुछ परफेक्ट नहीं भी हुआ तो ऑलमोस्ट देयर भी चलेगा। तो हमने ऑलमोस्ट देयर का भी लिस्ट दे दिया। बेसिकली परफेक्ट -1 इज ऑलमोस्ट देयर। बट फॉर योर पर्पस यू कैन लुक एट दीज 10 स्टॉक्स कि पॉसिबली इस वीक में इन 10 स्टॉक्स के अंदर में ऊपर की तरफ किसी भी तरह का मोमेंटम ब्रेकआउट आ सकता है और आपको वो एक मूवमेंट दे सकता है। तो दो तरीका है, एक आप अपने स्टॉक्स को खाली देख रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप पूरा स्टॉक यूनिवर्स में स्कैन करके निकाल रहे हैं कि कौन सा स्टॉक के अंदर में मोमेंटम आ सकता है और फिर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So I hope this process is clear to you, how to create your template, how to identify stocks. I mean, there's so much I can talk about, but let us try to take some questions. While we take questions, I think I'll be able to clarify things properly. Before I go to questions, let me just go through the presentation again and conclude my presentation before I start taking the questions. Just a minute.
बिफोर वी से बाय, महामंत्र वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाएगा, और जब जब शेयर बाजार नीचे जाता है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। ये नोन फैक्ट है लास्ट 100 साल से। आप देखो यहां पर भी ये यूएस मार्केट का है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस मार्केट भी प्लस बंद हुआ है हर साल, और बहुत कम टाइम पे ये एक्चुअली माइनस बंद हुआ है। हायर टाइम में ज्यादा बंद हुआ है, लेकिन लोअर टाइम पे बहुत कम टाइम पे ये बंद हुआ है नीचे। ये है कि इंडियन मार्केट का इक्विवेलेंट। तो आप देखो ये सालाना रिटर्न है इंडियन मार्केट का। ओके, लेट मी जस्ट, ये सालाना रिटर्न है इंडियन मार्केट का, जीरो के नीचे नेगेटिव रिटर्न। आप देखो नेगेटिव रिटर्न बहुत कम टाइम पे हुए हैं। जैसे यूएस में भी नेगेटिव रिटर्न बहुत कम टाइम पे हुए हैं, इंडिया में भी नेगेटिव रिटर्न बहुत कम टाइम पे है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट। तो जब भी मार्केट गिरेगा फटाक करके रिकवरी आ जाती है, बाहर आ जाते हैं, बढ़ता है धीरे 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 धीरे, घटता है एक बार में और फिर वापस बाहर आ जाते हैं। और वो मौका आपको सिर्फ 4 बार मिलेगा। इसी से मैंने वो निकाला था कि मेरी लाइफ टाइम में मेरे को 4 बार ही बड़ा मौका मिलेगा, जो मैंने 2 तो यूज कर लिया, 2 मेरे पास बचा हुआ है। देखिए यूएस मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, जाएगा ही, बिकॉज दैट इज द पेक्यूलियर। एंड दिस चार्ट टॉक्स अबाउट कि गिरा था कितना जल्दी रिकवर करता है, बट बढ़ता है तो कितने लंबे तक तेजी चलती है। If you want to connect with me, I'm active on Twitter and my YouTube channel is active. So feel free to connect with me for further knowledge. Now I'll be more than happy to take some questions. How do you want to do the questions? Yes, sir. So we actually had some questions which we had asked from our participants, Okay. and we would ask you some, but I think you've covered some major portions of it. I'm completely famished by your session. I must tell that. It was amazing and very knowledgeable, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I'll just start off with a question which everybody has in their mind. How does one build his or her portfolio if they were, say, probably a college student or an entrepreneur or someone who's like an employer who has capital to push into alternative investments? Yeah, so it's a very good question and very relevant one. As I've said, the circle of competence, that should be your first thought process कि मैं किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं। जैसे मेरा एक मित्र है, वो आयरन एंड स्टील में यहाँ पर फैक्ट्री चलाता है। अब उसको पहले से पता लग गया था कि लोहा का दाम बढ़ने वाला है। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मनी ही हैज मेड इन सेल एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। अपने बिजनेस से वो पैसा उतना नहीं कमाया जितना शेयर में, उन शेयर्स में काम करके पैसा बना लिया। अगर वो सपोज फार्मा स्टॉक्स में बैठा रहता, जिसका उसको एबीसीडी भी नहीं पता है कि किस फार्मा कंपनी का क्या एफडीए अप्रूवल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देयर इज लॉट ऑफ अननोन्स देयर। बट द प्रोडक्ट व्हिच यू यूज और यू डील विथ, you have much more command in them. First thing first to start is to look around your lifestyle. Look around the product which you are using. That's what Peter Lynch says. और किसी को भी अगर पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट के बारे में और सीखना हो ना, तो पीटर लिंच की 2 बुक्स हैं, वो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज हिज स्टाइल। हम लोग वॉरेन बफेट की बहुत बात करते हैं, ऑब्वियसली ही हैज डन फिनोमिनल वेल, बट देयर आर लॉट ऑफ अननोन गाइज। पीटर लिंच इज वन ऑफ देम। ही इज अ स्टार फंड मैनेजर ऑफ फिडेलिटी फॉर लॉन्ग टाइम। उनकी 2 बुक है, पढ़नी बहुत जरूरी है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप पहले अपने अराउंड में देखिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कंपनी कौन सी बनाती है। अब मैगी हम लोग खाते हैं, सबको पता है मैगी अच्छा है। नेस्ले को लेके अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 65% ऑफ द प्रोडक्ट नेस्ले मेक्स इज कंटेजियस। नाउ द क्वेश्चन इज, हैव यू ट्राइड टू फाइंड आउट वो 65% नेस्ले इंडिया के बारे में बोल रहा है कि नेस्ले ग्लोबल के बारे में बोल रहा है? 90% नेस्ले का कैश फ्लो निकलता है बेबी फूड से, 10% उसका मैगी से आता है कैश फ्लो। तो बेबी फूड के बारे में कभी आपने प्रॉब्लम सुना है कि नेस्ले का बेबी फूड में प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। So my point is that look around the companies which is part of your lifestyle, be it your business, be it your, and then invest in the companies whose management you can trust,
whose business you can understand. Start one company every month over a period of 10 months, build a portfolio of 10 companies. You can invest as low as 10,000 rupees. You can invest as high as 1 crore. But best is to focus on companies whose business model you understand. And to figure out इनका प्राइस में स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, वीकली बेसिस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडी कर लीजिए. अगर स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक दिखा रहा है तो एक बार उस स्टॉक से निकल जाइए. बट आपके दिमाग में वो स्टॉक पार्क्ड है, जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग आएगा हम वापस से उस स्टॉक में घुस जाएंगे. So, adding on to that, a lot of people have actually messaged me saying that the way you have explained the relative strength index is just beautiful. Like they understood it very nicely. Thank you for it. Thank you. So the other question would be that what are the market trends that you think are upcoming in the recent times? You're talking about sectors? Yes, sir. So you see, every rally is supported by a new leader. Previous rally was dominated by few leaders, like because of pandemic, pharma did phenomenally well, FMCG did phenomenally well. But ऐसा नहीं हो सकता है कि परपेचुअल वही करते रहेंगे. तो यहां से आने वाले 4 साल 5 साल में किस सेक्टर पे हमको पैसा लगाना चाहिए? सबसे पहला बैंकिंग, एनबीएफसी, क्योंकि इंडिया का 40% निफ्टी इज बैंकिंग एनबीएफसी. और अगर ये सेक्टर नहीं चलेगा तो इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही नहीं पाएगी. Because that is the core raw material which our country needs, right? If you have to instigate growth in our country. अब उसमें कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा एनबीएफसी अच्छा है, that study has to be done. I mean, it's difficult for me to give you a name right now, but we are talking about a broader picture that banking NBFC will always do good. Infrastructure ideally should do good because government will always try to revive the economy by pumping in money as a public expenditure in infrastructure facilities. So companies like traditional stores like L&T, yeah, all these should do good ideally. और इन्होंने कुछ किया भी नहीं, अभी तक perform नहीं किया, तो hopefully they should perform in coming few years. Third is, अगर आप रियल एस्टेट साइकिल देखोगे तो पिछले 8 साल में रियल एस्टेट सेक्टर ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बिकॉज पूरे 2008 का तेजी रियल एस्टेट का तेजी था. उसके बाद जो मंदी आई, फ्लैट है पूरा वो. Now I think there's a time that real estate, particularly companies dealing with residential real estate, they will see a lot of interest. And already prices have gone up. Sobha, Oberoi Realty, Sunshine, etc. सबके प्राइस बढ़ रहे हैं. Don't look at कि प्राइस नीचे से डबल हो गए लास्ट 1 साल के. ये तो 4 गुना भी हो सकते हैं ना, 5 गुना भी हो सकते हैं ना. तो आप अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी का पार्ट बन सकते हो तो उसका पार्ट बन जाइए. Fourth is platforms. As I said, any company which will own the pipeline, they will have definitely massive moat as part of their existence. So it could be Reliance Jio, it could be Naukri, it could be IndiaMart. They will always look expensive. So you will always have to invest in them when they go down. अभी रिलायंस जब 1850 होगा तभी इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन उस समय रिटेल इन्वेस्टर निकलेगा और आपको सोचना होगा कि क्या ये प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सही प्राइस है कि नहीं प्राइस है. बाकी there are more, I mean there is no limit to the discussions which can have on this, but broadly I hope you understood the identification process. Yes sir. We have a question asking that what is your take on the sugar industries? So sugar industry has recovered or getting the limelight because of the ethanol story कि वो 20% वाला जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया उसके कारण है. तो if it picks up well, last time भी किया था, but it was not really in spirit, नहीं implement हुआ था. Announcement में बहुत अच्छा हुआ था, but in spirit नहीं हुआ था, जिसके कारण over supply हो गया था, and it didn't get converted into using that much of capacity for ethanol purpose. But now that crude oil prices are high, 70-72 crude oil चल रहा है और डॉलर भी मुझे नहीं लग रहा है कि डॉलर. अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग से डिस्कस करना भूल गया. लेट मी जस्ट बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, लेट मी गो बैक टू माय स्लाइड. Sure, sir. So this is so I also make a 10,000 feet view on market by looking at what is happening in global markets and major global assets. The mother of all global asset is dollar, and that dollar
is calculated by dollar index. Dollar index is nothing but a index calculated by adding few major currencies as part of that index. अगर आप गूगल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको डॉलर इंडेक्स मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज डॉलर इंडेक्स नीचे में और दिस इज निफ्टी ऊपर. एंड दिस इज डेली चार्ट. लेट मी जस्ट रिमूव द डेली चार्ट. इसको मैं एक बार वीकली कर लेता हूं. आप देखो, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग inverse relationship between, most of the time, it will not happen daily, but most of the time whenever dollar goes weak, nifty goes up and vice versa. And that is not just for dollar. अगर आप क्रूड को भी देखोगे तो डॉलर और क्रूड के अंदर में नेगेटिव रिलेशनशिप है, या आप कॉपर को देखोगे तो डॉलर और कॉपर के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. So what has happened, because dollar appreciated. And why did dollar appreciate? Because US Fed around 3 days ago, they said that they may think of increasing interest rate by 2023. कुछ दिन पहले तक तो वो लोग बोल रहे थे कि 2023 तक हम लोग खुद ब्याज नहीं बढ़ाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे पैसे, तो चलने दो जो चल रहा है. लेकिन उनको अब इन्फ्लेशन से डर लगने लग गया है, बिकॉज oil prices have gone up, metal prices have gone up, so inflation is hitting all the economy. So they are saying कि नहीं हो सकता हमको ब्याज अब बढ़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है 2 बार हम ब्याज बढ़ाएंगे 2023 तक. उसके कारण व्हाट हैपेंड, यूएस यील्ड बेट अप. यील्ड मतलब जो यूएस बॉन्ड है वहां पे उसका यील्ड बढ़ गया. और डॉलर हैज अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, बिकॉज अगर यूएस में ब्याज दर बढ़ेंगे तो पैसे डॉलर में जाएंगे, बिकॉज वो सेफ हेवन है. अगर वहीं पर हमको ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो फिर हम बाकी जगह क्यों इन्वेस्ट करेंगे. तो बिकॉज ऑफ विच डॉलर वेंट अप अ बिट. तो पहले वो 90.5 के करीब ट्रेड कर रहा था, अब ये ऊपर जाके 92.3 में आ गया, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट के अंदर में एक जिटरीनेस आ गया. ओके, अब पॉइंट ये है कि क्या डॉलर यहां से स्ट्रांग हो जाएगा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर इंडेक्स. हम यूएसडी आईएनआर की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा उसमें डॉलर का भी इंपैक्ट है और आईएनआर का भी इंपैक्ट है. बट यहां जब हम डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वो मेजर करेंसीज का इंपैक्ट को समराइज करता है. तो अगर डॉलर स्ट्रांग रहा, जिसका कम पॉसिबिलिटी है बट हो भी सकता है स्ट्रांग है, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, एक सो कॉल्ड बबल बिल्डअप हो गया है, वो एक बार हो सकता है करेक्ट हो जाए. विल दैट लीड टू अ मैसिव फॉल? नो वन कैन प्रिडिक्ट. नो वन वाज एबल टू प्रिडिक्ट 2008 फॉल, frankly speaking. not to the level of I know people. No one was able to predict the this pandemic which has happened. So क्या वो फॉल मैसिव फॉल में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विडिटी ड्रिवन फॉल आ सकता है? We don't know. अगर आएगा भी तो I think it's always an opportunity to buy good stocks which are strong at a lower levels. तो अभी इसलिए एक जिटरीनेस है, because of which metals have also corrected and global markets have corrected because dollar has gone up. Let's see what happens to dollar before we make a convincing view on the market. अभी immediately मुझे निफ्टी जब निफ्टी इसके ऊपर चल रहा है, which is 15,100, so nifty is very strong. Dollar has gone up because of which nifty has gone weak. But the moment dollar turns back, मुझे नहीं लगता कि डॉलर 93 के ऊपर जाएगा डॉलर इंडेक्स. अगर इसके नीचे चला गया तो निफ्टी विल स्टार्ट दैट बुल रैली वंस अगेन. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शनिवार बैठ के एक 10,000 फीट से मार्केट का व्यू बनाते हैं कि क्या लग रहा है. एक व्यू बन गया कि हाँ ठीक है, तेजी हल्का सा मंदी थोड़ा दिन रह सकता है, करेक्शन इज फाइन. फिर उसके बाद हम लोग सेक्टर एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेक्टर ठीक लग रहा है, और फिर हम लोग स्टॉक्स में जाते हैं कि अच्छा इस सेक्टर में ये स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है, तो चलो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. Did I answer your question? Yes, sir. Okay. There are the inbox is actually flooded with questions. Someone's asking if we can invest in the IPOs considering today's market condition. See what is happening. It's a market which is liquidity driven, and we all know that. उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि ब्याज दर जब तक नीचे हैं दुनिया में, पैसे छप रहे हैं. एंड यूएस फेड इज आल्सो सेइंग कि मैं पैसे छापना बंद नहीं कर रहा हूं. मैं यही बोल रहा हूं 2023 में हम 2 बार हो सकता है ब्याज बढ़ाएगा, वो भी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर. तो पैसे बहुत प्रिंट हो रहे हैं, तो जिसके कारण लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है. तो आईपीओज आर ऑलवेज लाइक दिस, नो. जब लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है तो आईपीओज सब निकल जाते हैं, चाहे अच्छे हैं कि बुरे हैं.
So if you start evaluating the IPOs कि अच्छा है कि बुरा है, बहुत मुश्किल होगा, आप IPO में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो अभी सभी IPO में कर दीजिए, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी चल कर दीजिए, और IPO वाले दिन if you make money you just exit, or you can carry the position for some time. In fact, what you can do is, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी सेंसिबल IPOs है ना, if you go to web.stockage, एज रिपोर्ट्स यहाँ पर एक है, आप यहाँ पर देखोगे IPO नोट्स है, जितने भी सेंसिबल IPOs है उन पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं कि IPO कैसा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यू कैन लुक एट दीज एंड टेक अ कॉल कि कौन सा IPO में आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. And these are free reports, so I mean you can just go to Stockage Edge report and see all these reports if you want to study about these IPO and take a call. जैसे श्याम मेटेलिक है, तो हमारी टीम ने एक रैंकिंग दे दिया उसको कि अच्छी है, कर लीजिए. जो बुरी रैंकिंग की उसको मत कीजिए. Yes, sir. Or they're asking if you have tutorials on YouTube about how to use the Stockage app, and So in Stockage itself, I have these tutorials. So if you go to Stockage Learn, there are Stockage tutorials which I have recorded. okay, sir. What are the 2 books that you have recommended by Peter Lynch? Yeah, so Peter Lynch has, so you can, so 2-3 books which I want all of you to read. One is Bull, Bear and Other Beasts by Santosh Nair. This is a very good book, excellent storytelling book on market. ऑपरेटर क्या करता है, कैसे करता है, जो कि आपने हर्षद मेहता का सीरीज में देख लिया होगा, बट Yes, sir. रियल स्टोरी इज इनसाइड दिस बुक. तो आप इस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग बुक है. देन बुक्स बाय पीटर लिंच, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, ये वाली जो बुक है, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट. इनफैक्ट ये तीनों बुक पढ़ लीजिए इनकी. लर्न टू अर्न इज फर्स्ट बुक, बीटिंग द स्ट्रीट एंड वॉल अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, ये तीनों बुक आप पढ़ सकते हैं. और अगर बुक पढ़ने में किसी को किसी को तकलीफ होती है कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना बुक कौन पढ़ेगा, तो हमने क्या किया, ईलन मार्केट्स में स्कूल में जाके बुक समरीज बना दिया. तो गो टू elanmarkets.com/school, और यहाँ जब आप नीचे जाएंगे ना, दिस अगेन फ्री बुक समरीज है. You can read all the major books of market summaries here, and we are continuously building on to these summaries. तो यहाँ पर पीटर लिंच की बुक की समरी कहाँ है, एक मिनट, On the left, sir. Yeah. लर्न टू अर्न. So आप ये भी पढ़ सकते हैं. पूरी बुक पढ़ने की दरकार नहीं, it's almost like the book which we have converted into summaries. But anyone who loves to read book should read the book. Otherwise, One Up on the Wall Street की समरी भी है, Coffee Can Investing की समरी है, Learn to Earn की समरी है, Common Stocks and Uncommon Profit, all major books of financial market summaries यहाँ बन रहे हैं अभी. जितने हैं वो भी अच्छे हैं, तो आप इन्हीं में से पढ़ सकते हैं. There's another question which he's asking, how is the Nifty index weightage decided? It's decided based on free float, which is how much share, what are the shares in Nifty, and free float मतलब कितना शेयर पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास नहीं है. So Nifty index weightages, ये सब क्वेश्चंस का आंसर गूगल के पास है सर. ये तो आप गूगल करेंगे, हाउ इज दिस डिसाइडेड, गूगल आपको 4-5 आंसर दे देगा, नॉट टू वरी. फ्री फ्लोट इंडेक्स इसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स which are openly available to public. If your question was ki how is a stock decided, ki No. Okay, weightage is. Yes, sir. So generally they say that the economy and the stock market move together. If the economy is booming, the stock market also booms. But during the pandemic era, it reversed. Like there was an opposite movement. Why do you think that happened? So people who say general things are general people. And people who know what happens in the market are not general people. That's why they make more money from market.
So the fact is that economy always will, market will always react first and economy will follow. Because market, see, market is such a beautiful instrument. लोग बोलते हैं आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट मार्केट एक्चुअली में फ्यूचर प्रिडिक्ट करके आपको दे रहा है. क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है? जैसे मेरा एग्जांपल रिलायंस वाला, 2200 का शेयर है, बुक वैल्यू 1000 है, लेकिन 1200 रुपये स्पेकुलेटिव वैल्यू है. स्पेकुलेशन क्या चल रही है कि फ्यूचर के अंदर में क्या होगा. इमेजिन कीजिए फ्यूचर का प्रिडिक्शन आज के रेट में हो गया है, तभी तो 2200 का प्राइस आया है. तो एक्चुअली में मार्केट प्रिडिक्ट्स इकोनॉमी 6 महीने 1 साल पहले प्रिडिक्ट कर देता है. ये ग्राफ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. This graph actually sums up this. This is a graph relationship between economy and market. हमेशा आप देखो मार्केट पहले रिएक्ट करता है और इकोनॉमी फॉलो करती है. और ये सेक्टर्स है, किस स्टेज ऑफ मार्केट पे किस सेक्टर का डोमिनेंस होता है. बिकॉज अगर मार्केट और इकोनॉमी एक स्टेज पे होगी तो सिक्लिकल्स वर्क करेंगे, डिफेंसिव सेक्टर्स वर्क करेंगे, और एक बार मार्केट टॉप में होगा तो फिर ग्रोथ सेक्टर्स वर्क करेंगे. तो ये अब ये पूछ सकते हैं पीरियड क्या है. तो एनीवेयर बिटवीन 6 months to 1 year, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. अभी जो सिनेरियो है जिसमें पैसे जिस लेवल पे प्रिंट हो रहे हैं, ये सिनेरियो पिछले 100 साल में कभी नहीं आया था. तो हो सकता है कि अभी ज्यादा रिएक्शन है vis-a-vis what it was probably 10 years ago. आने वाले कुछ साल में और ज्यादा रिएक्शन होगा कि हो सकता है लोग मार्केट को गिरने ना दे. कभी इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है बट मार्केट तेज है, तो वी विल ऑलवेज बी, यू नो, विल सी अ डिस्कनेक्ट देयर. बिकॉज जो मार्केट में है वो बोल रहा है कि अरे इकोनॉमी में तो अभी बैंड बजी हुई है, बट 6 महीने बाद तो ठीक होने वाला सब कुछ. Yes, sir. There is another question. When there is everyday upper circuit, how do you decide which is the approximate good time to sell a share? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ललित आपने. अगर अपर सर्किट चल रहा है तो कभी आदमी बेच नहीं पाएगा, बिकॉज पैसे तो दिख रहे और बढ़ रहे और बढ़ रहे और बढ़ रहे. इसको क्या, आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता उस समय. जब अपर सर्किट है तो आपको लगता है कि ये तो और चलेगा, ये और जाएगा और जाएगा. तो बेस्ट वे टू डील विद दिस इज दैट थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए. 10% 10% 10% 10% करके बेच दीजिए. नहीं तो वो इतना बड़ा गिल्ट होगा ना जब वो अपर सर्किट खुलेगा और फिर ठक 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 वो नीचे जाएगा, तब यू विल हैव सच अ मैसिव रिमोर्स इनसाइड यू दैट यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स. So the best way to participate in the market is to stage everything. Your buying should be staged and your selling should also be staged. एक प्राइस पे दोनों पूरा काम नहीं करना चाहिए. लेना भी है तो 20-20% करके लो, बेचना भी है तो 20-20% करके बेचो. All right, sir. There was a question about mutual funds. Like, how do we decide which mutual fund we should invest in? इनी मिनी माइना मो. Okay. It's, Okay. see, the reason is that 5 साल पहले HDFC mutual fund was best. Prashant was doing phenomenally well, but he's the most underperformer in last 5 years. So I mean, mutual fund में बहुत difficult है judge करना. I fail to understand how do people give judgments कि ये top 10 mutual funds है. Eventually you will see historical performance of those fund managers, right? And history is history. You don't know future के अंदर में कौन क्या करने वाला है. So I think जिस पे आपका कंफर्ट आ जाए. ये रिटर्न को भी देख सकते हो, पोर्टफोलियो को देख लो, एक आइडिया लग जाएगा. But frankly speaking, it's very difficult to answer this question. I've not been able to answer this. And whoever videos I have seen who are trying to answer this question, I find it to be very, very biased towards return. कि लास्ट 1 साल में इसका रिटर्न अच्छा है तो ये बंदा अच्छा है. ये that is incomplete. बल्कि मैं ये देखूंगा कि अगर सपोज एक कंपनी है एप्पल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ में. जैसे एक कंपनी है जिसको सपोज बहुत कम म्यूचुअल फंड ओन करते होंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंडिया मार्ट के जो ओनर है, ही इज इन्वेस्टर इन माय कंपनी, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, खुश हो जाएंगे.
यहाँ पर स्टॉकेज में इंडिया मार्ट जाऊंगा तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग नजर आएगी। अब देखिए इंडिया मार्ट के अंदर में यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्ट किया था 4,58,000 शेयर। अब इसका हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो इन्होंने मई में भी इन्वेस्ट कर रखा है, इन्होंने अप्रैल में भी इन्वेस्ट कर रखा है, इन्होंने बढ़ाई है, मार्च में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो मुझे एक्चुअली में ये फंड मैनेजर पे पैसा डालना चाहिए, बिकॉज ऐसा फंड मैनेजर जो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जिसने एक्चुअल में परफॉर्म किया है। अब ये आपको कोई रिकमेंड नहीं करेगा, बिकॉज हो सकता है आज की रेट में ये उतना बड़ा परफॉर्मर ना होगा ये कंपनी। अगर लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 71% है, मे बी इससे बेटर परफॉर्मिंग स्कीम्स होंगे, बट ये फंड मैनेजर यूनिक है क्योंकि इसने इंडिया मार्ट को आइडेंटिफाई किया था। तो मैं इस पे बेट लगाऊंगा, फ्यूचरिस्टिक बेट। So it is as good as putting a futuristic bet on a stock. You are putting a futuristic bet on a fund manager. So I'll ask my last question. There are a lot of questions which are coming in for gold. It's sort of expected in every session. So what do you think about investment in gold? देखिए, investment in gold or trading in gold. Trading in gold is again dependent upon how dollar moves. जैसे डॉलर मूव किया था ऊपर तो देखिए गोल्ड गिर गया था, अदरवाइज ये 1800 के ऊपर में गोल्ड, मेरा पर्सनल व्यू था कि इट शुड सस्टेन, बट बिकॉज डॉलर रिएक्टेड लाइक दिस गोल्ड हैड टू फॉल। शुड वी कीप गोल्ड? यस। हाउ डू वी प्लान टू गिव गोल्ड? मैं जैसे करता हूं मैं आपको बता देता हूं। सीएक्स के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, गोल्ड गिनी। अगर यहां सर्च करेंगे ना गोल्ड गिनी, मैं क्या करता हूं, मैं हर हफ्ता एक गोल्ड गिनी खरीद लेता हूं, और मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूं, बिकॉज एक तो गोल्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मैरिजेस इन फैमिली, एंड एज एन इन्फ्लेशन हेज हैविंग 4 to 5% allocation of your portfolio including the wealth of your family, जिसमें ज्वेलरीज पे हो गए 5% कम से कम होना चाहिए गोल्ड के अंदर में। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कंटिन्यूसली लेता जा रहा हूं। अब क्या होगा, कम प्राइस गिर जाएंगे तो अपने को तो पता ही है, वी नीड that purchase. Best way to invest in gold is either invest through these MCX में contracts जो है उनको लेके उनको रोल ओवर करते रहिए, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करते रहिए, या आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर लीजिए स्टैगर्ड वे में। डोंट बाय एट वन प्राइस बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट किए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में गोल्ड ETF, लेट्स गो टू क्लासेस अदर्स, यहाँ पर गोल्ड होगा ETF, गोल्ड ETF। तो लास्ट 1 साल के अंदर में गोल्ड हैज डन नथिंग, फ्लैट है। हो सकता है लास्ट 5 साल के अंदर में 8%। अब लास्ट 5 साल में इक्विटी देखोगे तो वो 14-15%, 18% रिटर्न होगा। सो इट्स अ गुड हेज। सो कीप ऑन बाइंग छोटे छोटे क्वांटिटी में एंड मेंटेन अ 4 to 5% allocation of your portfolio in gold. Okay, sir. Thank you so much, sir, for taking out your time on a Sunday and educating us. Before I leave, I have to tell you that I've become your fan after this session. Thank you so much. I have to answer one question which is related to Bitcoin. A lot of people are asking. Yes, sir. And I can see you are intentionally not asking me that question. Which I want to thank you that you have not asked me that question. But because so many people are asking, I should tell that I always believe in one thing, that you should try new things, because the way we all are evolving, we never know what is right, what is wrong. There will always be two schools of thought. People who will say this to be a crap, people who will say that this is the next big thing, and some things which probably we may not be able to comprehend. और लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो उसको क्रिटिसाइज मत करो। तो आई बिलीव दैट मेरे को नहीं समझ में आता बिटकॉइन। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दिस, ऑल्दो आई फील आई मे हैव missed the bus,
but if it is really worthy, I may see a long upside in this. अगर कुछ मेजर इसके अंदर में होने वाला है, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे एनईटी है, बहुत सारे इस तरह के आ रहे हैं अभी, एनएफटी फॉर टोकन, याद नहीं आ रहा मुझे. हाँ, तो या someone is messaging me, एनएफटी है कि एनईटी है क्या? Yes, NFT. So NFT. that's it. सो इसको आप लॉटरी टिकट मान के थोड़ा बहुत डाल दीजिए. एक तो फोमो नहीं होगा, दूसरा कुछ अगर होने वाला है तो यू आर पार्ट ऑफ दैट. योर पोर्टफोलियो, एवरी ट्रांजेक्शन कैन हैव मैक्सिमम लॉस लिमिट ऑफ 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो आपने जब वो 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा है, तो 2% मतलब 20,000 रुपए का आपका नुकसान उस पोर्टफोलियो में होना चाहिए. 20,000 रुपए डाल दीजिए ना बिटकॉइन में. वाई तो मतलब इतना सोचता ही क्यों है, कितना लग जाएगा? 20,000 लग जाएगा. एटलीस्ट यू बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, देन यू विल रीड, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर, then you will gain confidence, and probably this for 20,000 you will increase to 40, 50, 60, 1 lakh. The more you understand, the more you will be able to commit yourself to the instrument. Yes, sir. Thank you once again, sir. Hiral, over to you now. Yes, Kavita. Thank you, Vivek sir, for the Jeeto combination and also for the subscription code to StockEdge. We really loved the session, and as Kavita told, even I'm your fan now. Hiral I will actually now texted request. me. So Hiral actually texted me and she's like, Kavita, I know I'm supposed to be organizing, but I'm taking down notes. Can you please take it over? Okay. Yes. Is this getting recorded? So you guys will anyways get the recording. Yes, we do, sir. Yeah. I will now request our secretary, Mr. Natesh Loda, to give the vote of thanks. Natesh, can you please unmute yourself? I'm sorry. Jai Jinendra, everyone. This is Natesh Loda from and the Chief Secretary of Jeeto Chennai Youth Wing, and I would like to thank Mr. Vivek Ji for a wonderful session. It was a great session, encouraging novice traders like us to go ahead and invest better. So thanks a lot, Vivek Ji, and also thank you for the 1 month subscription. I think premium subscription you have offered to the Jeeto family for the next one month. So thanks a lot for that. I'd also like to thank all the participants who have joined for on a Sunday morning. I hope you have gained a lot more than what you've expected. So thank you for joining us, and also everyone from across India who have joined us. Thanks a lot, everyone. So yeah, Jai Jinendra again. We would also like to thank our sponsors, due to whom this session was possible, and of course the working committee, the team as a whole of Battle of Stocks. Hiral, over to you. Hiral, I think you're muted. Yes. And I would also like to thank Jitesh Katrela for the technical support. Now, I would request all of you to raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
अंतरिक्ष Thank you excellent. all. अंतरिक्ष excellent रहे. Superb program. Thanks a lot to Youth Wing. Thank you, sir. It's all the teamwork, uncle. Thank you so much. Thank you all for joining us. Have a great Sunday. Thank you. Enjoy your Sunday. Thank you, Vivek, sir. Thank you. Bye. Bye, sir.